Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to welcome you all to the world of the modern Christian movement in today's conference. I would like to also welcome all our international guests who have connected to us here online, especially our President of the International Christian Council, Mr. Panos. I would also like to welcome all the national and international media who are present here in large numbers. We have come today to witness history in the making. The global Christian movement has taken a massive leap from being just an idea to today launching a global movement towards prosperity and growth for and through art and culture. The modern Christian Games are a single global platform for the vibrant exchange of art, culture, traditional events, adventure, entertainment, games, esports, air sports, and martial arts. In short, the modern Christian Games are the equivalent of the modern Olympic Games in respect to art and culture. I would firstly like to talk about the need for Christian Games. Over the course of history, art and culture has evolved constantly, some gaining prominence, while a few have been lost over the time. In today's age and day, we see a vacuum in the sphere of art and culture at a global level. With the world bereft of a global platform to celebrate humanity and its soul, which is art and culture. In comparison to sports, which has a sizable participation, audiences, and traction overall at the global arena, the world lacks a global standardized platform for art and culture. This vacuum is a primary problem statement we have taken up, developing a global platform for global art forms. Talking about India, and from my experience as part of the Indian civil service over the last 2 decades, a large number of art forms which were prominent and mainstream have been marginalized. Today, the challenge is twofold. One, revival, and two, growth. We not only need to revive these art forms which are on the verge of losing or already have lost, but also need to promote currently mainstream art forms to bring them together and give them their due share. In order to bring them to a common global center stage, we have to work together across geographies, nations, cultures, and create a new channel for global prosperity and growth. In the post-pandemic era, we see a lot of people focusing on their inner emotional and mental well-being compared to their physical well-being. Art and culture cater directly to humans and emotions and hence play a direct role in human development and evolution and its growth. All the art forms, artists, artisans, clusters, and eventually mobilizing a critical mass of people keen on the development of arts and culture, training and skill development. Since the last arts are deeply linked with communities, we plan to roll out community initiatives at the grassroots level through awareness, access, and opportunities and vocal proponent for the development of art and culture, along with global linkages and networks, and work towards progress, harmony, and peace. Our plans include conducting the
first Paralympian Games in 2024, the first Junior Pythian Games in 2025, and the first International Modern Pythian Games to be held in 2027. In order to achieve this Herculean task, technology will play a major role in our movement as an enabler to bring art and culture together through facilitation of dialogue, conversation around art and culture, propagating each art form and its cultural history beyond its current limited nature, and democratize the access to our own history and culture through the ages to come. To reiterate the power of arts and culture for our current and future generations, and creating a global platform for global art form. Thank you and good wishes to all of you. I now would request Mr. Panos to give his few words. Thank you. Council, and he's been working to revive the Delphi ideals since 1984, under whose leadership Indian Pythian Council is definitely going to fly high very soon. So let's welcome Mr. Panos Katsis. As well, as I well know, the Delphi Games Pythia Games start in Delphi 700 BC and cover art and athletics. In all your countries, you have a theater. In all your countries, you have a stadium. And Delphi Games is about culture and sports. But before sports, you should be serving one of the arts. Nowadays, humanity is in a foggy period. The pollution, the pandemic, the wars are all of those go against Delphi. Yeah, that was Delphi. That was the oracle that prophesied for a better future. It was the Amphictyonic League that should erase the problems between nations peacefully. It was, of course, I repeat, the meeting, the festival, the celebration of Delphi Games, what we revive today. The most important, we have to offer education to youth. This is the greatest part of our movement. That's why we have created here a pre-college masterclass to knowledge for leadership with humanism. That means 50 young people from all over the world, they are going to have a 2 weeks program for those idiots, because we have to create citizens in love. Even Eric was allowed to come to Delphi and ask advice for the oracle how he could win the pre-college period. Long ago, almost 50 years ago, Vice President of Indian Pythian Council, who is the Executive Director, International Pythian Council, my mistake, and she is also an Executive Director on Hellenic Research of Harvard University, USA. She is directly connected with us from USA, so let's welcome Ms. LaFaze from USA. These are new waters we are chartering at our time, and I'm so happy to be at the beginning of this journey. And I am honored to be part of this vessel, the International Pythian Council, founded by Mr. Vicente Goel, and we make progress in these discoveries. And this is part of the Delphian and Pythian ideal, the preparation of the
what we bring with us to these areas of meetings that we are about to have. यार मैम को बोल के आओ, उसने पोडियम पे ही बोल रखा है, जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चल रही है तो ग्रुप में डाले ना। Means coming together to bring your best, to bring yourself, to participate and engage in this common experience. And I'm so looking forward to the common experience we're going to have together and what we're going to ये share. मीटिंग हो रही है in तो weeks, जो months, इसकी years पूरा to वो come. फोकस करे ना, पूरा फ्लैक्स पूरी फोकस करे। अब उसने Bringing ओवरवाइड कर दिया। in my journey, and I would like to very much say how much I appreciate this opportunity. We talked earlier about this, the opportunity of understanding and making use of global networks, of nodes, small and large, large and small, so that we can facilitate and continue to use our instruments, our crafts, our art forms, so that we can express that needs to be expressed and that needs to be shared. This to me is going to be a big part of our journey. Or celebrated in the area of Boeotia, which is very, very close to Delphi, just surrounding that region of Delphi. So this point of inspiration is our memory, that we bring with us, and each one of us has study, we engage and we explore and we learn anew. And a very important part in any craft, any art, any endeavor, it functions together to promote and to make inspiration and creation possible. So I wish for all of us that all these principles of memory, study, and expression will continue to be good guiding forces and bring us good winds in our journey. And I am ready to serve as I can to the best of my ability so that we can optimize our efforts to good results in localities and universally. Thank you so much and good wishes. Connected with us globally, online and offline. Thanks a lot. And proceeding further, when the ancient games first began, the gods were said to be their creators, and conflicting stories about who was really in charge of the games since conception persisted. Elated to take this opportunity to introduce the founder of modern Pythian Games, Mr. Vijender Goyal, who is a multifaceted person and based on his extensive and exposure in the field of sports administration, politics, disaster management and martial arts, conceptualized the concept of modern Pythian Games. We are thankful to you, sir, for adding a golden feather in the hat of success worldwide. And before proceeding further, please allow me to give a brief speech of his journey throughout. The President of India during her presidential campaign, he was the previous treasurer of India's Haryana Olympic Committee. He was also the chairman of the National Council on Disaster Management for the Associated Chamber of Commerce and Industry of India, and he was the General Secretary of the National Council for Small Traders in India. He considers the arts, culture and technology to be a vehicle for social transformation as well as a source of growth and equality. He is working to bring about a revolution in society through the arts and the preservation of culture. He aims to help our environment, security and safety and educational system by bringing new technologies. Under the banner of Modern Pythian Games, he has the vision to bring arts and cultural activities from the unorganized to the organized sectors, regions, and the possible loss of human lives, infrastructure, and economic growth. He is also known for introducing technology for online early warning of earthquakes in South Asia. The solution has already been used by the National Disaster Response Force and the Government of Haryana in India. The arts
produce national identities and celebrities, and these celebrities make people feel proud of their country. Understanding this fact, Mr. Goyal created a history when he presented the concept of the modern Pythian Games on April 7, 2022 at the Delphi Economic Forum, Delphi, Greece. It was a historical moment for him when he presented the idea to the world and established the modern Pythian Games on the global map. And it was witnessed and well appreciated by Mr. George Convins, advisor to the Honorable Prime Minister of Greece, Mr. Panos Kalsis, former mayor of Delphi, and many other present dignitaries there. उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो थामना पूरा आसमान बाकी है। With these words, let's welcome Mr. Vijendra Goyal, the founder of Pythian Games, modern Pythian Games in India and all over the globe. Mr. Vijendra Goyal. Namaste from India to all my friends who went from abroad and the strong supporter of the modern Pythian Games and the idea. I have a lot of respect for Ramchandra Tejawat Sahab and who is on the dais. Dalip Singh Sahab is the former election commissioner, state election commissioner of Haryana. Sanjay Srivastava Sahab is also the former state election commissioner of Delhi. Anil Kumar Sahab is the former additional chief secretary of government of Karnataka. Mr. Vipin Gupta is a industrialist with the wing industry and is a big supporter of the Pythian movement. Mr. Sahil Seth is an Indian Revenue Service officer and I can say he has the energy to change the world. And I have a lot of respect for him and he has proved himself. Mr. Shiva Kumar, he is attached to me since long. And he is working day and night. He is also sitting on the dais. And I can say he is really a helping hand to me when I formalize the concept of modern Pythian Games. I respect all people here who are present here. They are moral boosting, always energize me to bring some new concepts. If you talk about Mr. Ramchandra Tejawat Sahab, Mr. Anil Kumar Sahab, Dalip Singh Sahab even traveled with me to Greece and he has expressed, he has felt, he has observed how the peoples are now need the Delphi idea and the idea of modern Pythian Games. I've been working in different fields from the last 30, 40 years, started my career from sports, then politics, then disaster management. During lockdown, everybody was locked. Everybody came to an isolation. And a lot of problems came in front of the people who even struggling to survive. And I have seen a lot of artists died due to lack of money because due to lockdown there was no activities. So that Recording in progress. that isolation insisted me to create with a new idea, a new concept, because we have lot of activities around the world
and it has now fallen our day-to-day activities. We have a lot of questions. We need new concept of business. We need employment. Our economy should be strong. We need to promote the tourism globally. And how it will be possible? Now it is the time, now the countries are even standing in front of each other to fight how we can bring peace before them. There were so many questions which inspired me to come out with a new concept which can give a new direction to the world. Lot of study. I tried to make a lot of study Indian history, global history, and ultimately I reached to the Greek history. Where I noticed there were 4 Pan-Hellenic games in the ancient Greece. Greece is the oldest democracy of the world, and India is the largest democracy of the world now. These all Pan-Hellenic games were discontinued in 394 AD. And there is a historical evidence. Olympic Games were held even prior to 782 BC. And there is a historical record of the existence of Pythian Games since 582 BC. Olympic Games were for the physical sports. And the second rank, it was the Pythian Games. Pythian Games were the combination of arts, culture, as well as sports events. Music, dance, poetry, athletic, wrestling, chariot racing. It was part of the Pythian Games. Decided to discontinue these all games in 394 AD. Tribes there, they were fighting each other to take over the temple of God. They signed a Delphi Peace Accord. The Coubertin, a Frenchman, revived the Olympic Games. When he was reviving the Olympic game, he wanted to revive the Pythian Games also. But he could not revive 2 games at one time. But the technology was not advanced, so it was a problem for them to decide who is the best. It was a big problem for them. So ultimately, they decided to go with sports. They dropped all artistic events from the Olympic moment in 1954. 1927 to 30 as Delphic festivals in Delphi, Greece itself. In 1984, Mr. Panos Kalsis, who just addressed you, he taken the initiative to revive the Delphic ideals. It is something that happened also a miracle to me. I don't know. I never connected to the world. But God inspired me to work on the Pythian Games. So I developed a concept which I will show you in the PPT presentation. And that concept really can change the world, I can say. Pythian Games can lead the world. It can play a very important role in establishing peace in the world, in the cultural diplomacy as well. Art and culture industry is 800 billion euro industry. What platform you have? And we have created a platform for you in the language, literary and oratory arts. Expertise and win medals for the other country. We have opened this opportunity on Pythian Games. If
You are going to regulate 800 billion euro industry. So where this money will go? This will come to your treasury of your governments. The money will be distributed to the all artisans, and it should be done. And only Asian Games can do it. It can organize the whole, but it cannot happen overnight. Even you see, when Mr. Coubertin revived the Olympic Games, it took 60 years for the diplomatic status. My international friends, I tell you, I am speaking in my Indian language. So, because question is in my language, so please don't mind it. इंडिया देखिए, अभी तक जो आर्ट एंड कल्चर है, सब मेरी अपनी सोच के हिसाब से, जो मैंने सोचा कि मैं इस पर काम किया। हमारे देश में बहुत सारी एनजीओ बनी है, बहुत फाउंडेशनें बनी है, बहुत काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे लाया है, हमें कैसे हर आर्टिस्ट तक पहुंचना है। अभी देखिए, आप अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट जाके जो स्टार बन गया, सेलिब्रिटी बन गया, बॉलीवुड में जाके बन गया, वही पैसा कमाता है जिसने अपनी मेहनत कर ली, खर्चा कर लिया, लेकिन बाकी सब स्ट्रगल करते हैं। हमें एक मल्टी लेवल स्ट्रक्चर खड़ा करना है, जैसे ओलंपिक्स का बना हुआ, ताकि हर आर्टिस्ट अपने उसमें पार्टिसिपेट करे। हमें आर्ट फेडरेशंस को बनाना होगा, और उसका एक मल्टी लेवल स्ट्रक्चर करके, इसमें मैडम ओवरनाइट नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम बहुत स्पीडली इसको करेंगे। इसलिए इंडिया में पहली बार स्टेट लेवल का स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, और इंडिया इसमें विश्व गुरु आर्ट एंड कल्चर में अपने आप को एस्टेब्लिश करने जा रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात आपको कहूँगा कि आज मैं किस कैपेसिटी से यहाँ फाउंडर में कह रहा हूँ, ये हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है। और वो फख्र की बात क्या है, हमारे पास कबड्डी, कुश्ती, किसी भी गेम का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। ये पहली बार है भारत के इतिहास में कि इतने हिस्टोरिकल गेम, वो भी ओलंपिक के लेवल के गेम्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अब हिंदुस्तान के पास, और वो हमारे पास है। अब हिंदुस्तान के पास पावर है 800 बिलियन यूरो की इंडस्ट्री को कंट्रोल करना। अगर ये 800 बिलियन यूरो की इंडस्ट्री का 10-20% भी हिंदुस्तान ने कर लिया, तो आप देखो हमारे खजाने में कितना पैसा आएगा, कितना हमारा रुपया मजबूत होगा। और जब मैं दिल्ली में बैठा हूँ, अब मेरी कोशिश हो रही है मुझे हाई करके दूसरे देश ले जाएं, मैं बता रहा हूँ, मैं सरकार को ही बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से हिल गया, जब ओलंपिक आया था तो उसको स्विट्जरलैंड ले गए, ओलंपिक सिटी बना दिया, वो कर दिया। आज जितना रेवेन्यू वर्ल्ड का जा रहा है, वो जा रहा है स्विट्जरलैंड। किसी ने ब्रुनेई के सुल्तान को ये समझा दिया कि जी इंग्लैंड की पहचान तो है क्रिकेट से, और स्विट्जरलैंड की पहचान है ओलंपिक से, अब कतर की पहचान बन गई फीफा। क्यों नहीं पीथियन गेम ब्रुनेई की शोभा क्यों नहीं बन जाती? तो हम हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता? हमने भारत सरकार को कहा है कि आप इस पे कार्रवाई करें, ताकि इस बहुत बड़ी चीज को आप नहीं तो छोड़ सकते हैं कल जाके, आपको एक्ट करना पड़ेगा। और इससे अब जब मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, मॉडर्न पीथियन गेम का सेंटर ये है, आप देखिए जितनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, सबके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में क्यों है? अब चूंकि मॉडर्न पीथियन गेम इंडिया के पास है, तो सभी आर्ट फेडरेशन के हेड ऑफिस इंडिया में आ जाएंगे। जब इंडिया में आ जाएंगे तो सारी एक्टिविटी का सेंटर इंडिया होगा, और जब इंडिया में सेंटर होगा तो टूरिज्म किसका बढ़ेगा? डेलीगेशन कहाँ आएंगे? इंडिया में आएंगे, कंपटीशन आएंगे तो यहाँ आएंगे। इवन पूरे वर्ल्ड में अगर इवेंट्स होंगे तो शेयर इंडिया को आएगा, ओलंपिक का शेयर ओलंपिक को जाता है। और इसमें आप जैसे मीडिया के साथियों की बहुत सहयोग की जरूरत है, ये आपके लिए भी है। मुझे पता है, मैं राजनीति में भी रहा हूँ, मेरे मीडिया के दोस्त कितना संघर्ष करते हैं मुझे अच्छी तरह मालूम है। आपको कितना क्या रिवार्ड मिलता है मुझे अच्छी तरह मालूम है। पीथियन गेम पे आपकी पहचान होगी इंटरनेशनल लेवल पे,
आपको भी अपना जो एक्सपर्टाइज है पूरे विश्व को बता सकते हैं, आप ही लोग लीड करेंगे। जब मैं डेल्फी में गया तो मुझे किसी मीडिया वाले ने पूछा आपने इतना बड़ा सांग रच दिया, और मैं देसी भाषा में कह रहा हूँ, मैं तो एक छोटे से गांव में हरियाणा से आता हूँ, कि आप गवर्न कैसे करोगे। मैंने कहा बहुत आसान है, मेरे पास जो भी आता है कि जी मैं इस आर्ट का एक्सपर्ट हूँ, मैं कहता यू आर द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। अब लाइन तेरे से शुरू होगी और बड़े स्मूथली चल रहा है, पूरे विश्व में फैल गया है। और ये कितना बड़ा फख्र की बात है कि हमारा इतिहास जो है, हमारी कल्चर जो है, हमारा ट्रेडिशन जो है, आज उसको पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे यादाश्त कम आए हैं क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, टाइम डिफरेंस की प्रॉब्लम है। 30-40 तो मेरे भी जुड़े हुए, 100 आदमी पूरा वर्ल्ड 90 देशों से रिप्रेजेंटेशन 10 महीने में करना कोई छोटी बात नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कल्चरल मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड दैट आई टेल यू फ्रॉम हियर। मॉडर्न पिथियन गेम्स को विश्व का सेंटर भारत को बनाने के लिए जी दुश्वारी कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ है, गवर्नमेंट क्या कोई दिक्कत नहीं है, तेरा मालूम होगा। पर मुझे इतना पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का अपना जो विजन है आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत बहुत ब्राइट है, और वो उनका कार्यालय कुछ ना कुछ कर रहा है। बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ। दे आर इन पॉजिटिव नोट। किस लेवल पे बातचीत पहुंची आप लोगों की? अब देखिए मुझे तो कोई बताता नहीं है, लेकिन हम सरकार से डायलॉग किए हुए हैं। टाइम लगेगा, अब तो बेबी है, थोड़ा सा बड़ा होने कि अभी भारत सरकार की सबसे पहले ड्यूटी ये बनती है कि पीथियन गेम्स को रिकॉग्नाइज करे इमीडिएटली, ताकि पूरा विश्व उसको फॉलो करे। क्योंकि भारत में अगर ये गेम्स, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडिया के पास है, भारत इसको रिकॉग्नाइज करता है तो पूरे वर्ल्ड की सरकारें इसको रिकॉग्नाइज करेंगी। और हमारे जैसे बहुत सारी जोनल कल्चर सेंटर्स बने हुए हैं, हमारे फॉरेन में मिशंस बने हुए हैं आईसीसीआर के, और हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस बने हुए हैं। उसको एज ए ब्रांड पूरे वर्ल्ड में प्रमोट किया जा सकता है। कुछ खर्चा थोड़ी करना है, तो लेके आना था सर। आपका क्वेश्चन बहुत जायज है, आई अप्रिशिएट, मैं बहुत इसमें करता हूँ। और ये जो आपके जहन में बात है, ये मेरे जहन में भी थी जब मैंने इस कॉन्सेप्ट पर डेवलप किया। और आपको खुशी की बात होगी कि मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर्ड है, तो कल आपको भी स्पॉन्सर्ड मिलेगा। इसी के लिए पीथियन गेम काम करेगा। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, जब मीडिया को ही नहीं पता था, तो आज मैंने पहला काम किया कि आप मीडिया को बताओ, और आपसे समर्थन मांगा है मैंने पीथियन गेम्स का प्रमोट करें। जब आप बढ़ेंगे तो आपके पीछे हम बढ़ेंगे, हम दोनों का तो साथ है। आप जब तक ये अवेयरनेस लोगों में नहीं लाएंगे, पीथियन गेम्स क्या हैं, उनके क्या फायदे हैं, मैंने आपको बताया, आप सरकार को भी समझेंगे, हम लोग की बात कर रहे हैं। और अल्टीमेटली फायदा किसका होना, देखिए मैंने आज कॉन्सेप्ट पैदा कर दिया, मैं 10 साल रहा हूँ, 5 साल रहा हूँ, मुझे नहीं पता। आज जिसने ओलंपिक पैदा किया वो नहीं है, ओलंपिक चल रहा है। मैंने ये सोच के नहीं किया कि मेरे लिए कुछ है, मैंने इसको अगली जनरेशन के लिए तैयार किया है, और मैं इस तरह के लोग डाल रहा हूँ इसके अंदर जो इसको अगली जनरेशन तक आगे ले जाए। और तो ये मैं यही सोचूंगा, मेरी यही कामना है कि भारत इस पर चलता रहेगा। इसमें कहा कि अगले 20 साल में जहां आज ओलंपिक खड़ा पीथियन गेम्स लेवल पे आ जाएगा, और अगले 20 साल के बाद इसका साइज ओलंपिक से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ग्लैमर इसमें है, स्पोर्ट्स इसमें। Friend and brother, Vision Leroy, support and empower the role of female as considered human rights. Thank you very much. That was my question. Yeah, Lena, relation to the women in the ancient Greece, not the Olympics. And if you see in the Pythian Games structure internationally, all continents are governed by the women. And we are going to create such policies where we can create a balance between the male and the female, and they have the more representation in the Pythian Games. Branding of the Pythian Games from the government of India. पैसा अपने आप आएगा. They should give the recognition to the Pythian Games. On behalf of International Pythian Council and the sponsors of the event, MNC group of companies and Tamil Research Foundation, and mainly the founder, on behalf of the founder, Mr. Vijay Goyal, we would like to thank every journalist over here who supports
even all the delegates in India and abroad. A very much thank you for all purposes. Thank you very much. हर आदमी के दिल में आर्ट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म पे हो। तो आर्ट एंड कल्चर हमारे ट्रेडिशंस के खिलाफ तो कोई भी नहीं। सबको रास्ता चाहिए, वो रास्ता पिथियन गेम्स के माध्यम से हमने पूरे विश्व को दिखाया। अभी चूँकि मैं इंडिया से तो हूँ, तो हो सकता है घर की मुर्गी दाल बराबर हो, लेकिन पूरा विश्व आप देख रहे हैं कि 10 महीने की इस मूवमेंट ने 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को अगर पहुंच बनाई है तो छोटी बात नहीं। और मेरे को ग्रीस ने बुलाया। एक तो होता कि मैं अपने खर्चे पे जाऊं, और एक मुझे वहां से बुलाए और कहें जी आप प्रेजेंट करें इस कॉन्सेप्ट पर, वो भी डेल्फी इकोनॉमिक फॉर्म पे उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने प्रेजेंट किया, ग्लोबल मैप में इसको एस्टेब्लिश किया, और आज आप मीडिया लोगों को बता रहा हूँ कि हमने इतना बड़ा काम किया। दूसरा, आज तक हिंदुस्तान के पास किसी भी गेम का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं है। अगर हमारे भी गेम है तो इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दूसरे देशों के पास हैं और हम रॉयल्टी देते हैं। ये पहली बार है कि इतने ऐतिहासिक खेलों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हिंदुस्तान के पास आए हैं, तो हिंदुस्तान को तो इसको ग्रैब कर लेना चाहिए, क्योंकि ये इसका साइज ओलंपिक से भी बड़ा होगा। इसके कल टीवी राइट बिकेंगे तो ओलंपिक से डबल ट्रिपल में बिकेंगे, क्योंकि इसमें म्यूज़िक इसमें है, डांस इसमें है, पोइट्री इसमें है, स्पोर्ट्स इसमें है, तो पूरा ग्लैमर है। और इससे क्या होगा, जितना आर्टिस्ट के लिए जितनी एक्टिविटी होंगी तो आर्टिस्ट को ही काम मिलेगा ना। एक्टिविटी बढ़ेंगी तो आर्टिस्ट को काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा। अब जैसे एक इवेंट हुआ, किसी ने स्टेज लगाई, किसी ने म्यूजिक सिस्टम लगाया, तो कितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और भारत को ये सुनहरा मौका मिल रहा है कि इससे पहले ये गेम किसी और देश में शिफ्ट करें, भारत सरकार इनको तुरंत रिकॉग्नाइज़ करें और अपने डिप्लोमेटिक मिशंस को सरकार को इन्वॉल्व करके इसको ब्रांड बनाए पूरे विदेशों में, और उसका फ़ायदा ले। उससे क्या होगा, आज जो हमारा रुपया गिर रहा है, हमारा रुपया मजबूत होगा, हमारे खजाने में पैसा आएगा। 800 बिलियन यूरो की इंडस्ट्री की छोटी इंडस्ट्री नहीं है, और आर्ट एंड कल्चरल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग इंडस्ट्री है। तो जब हमारे वर्ल्ड में, हम अपने देश में देख रहे हैं कि हमारा समस्या ये सामने बड़ी है, हम बोले ना बोले, अगर उसका सॉल्यूशन एक आ रहा है तो सॉल्यूशन को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सरकार अपना काम करती है, ये नहीं मैं कहता कि सरकार काम नहीं करती, सरकार का काम ही काम करना है। उनकी जो स्कीम्स हैं चलती हैं, इम्प्लीमेंट करती। चूँकि पिथियन गेम्स का जो आना हुआ अभी, और जो मैंने हर चीज़ आपको बताई, ये उनके शायद अभी नज़रिए में भी नहीं है। हमने भारत सरकार को समझाया, वो समझने की कोशिश कर रही है और बहुत पॉजिटिव नोट पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है, वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं। पर ज़रा आप लोगों की जन भावना सरकार तक पहुंच जाए, क्योंकि सरकार तो जन भावना से होती है। और आप लोग अपनी आर्टिस्ट की जो भावनाएं हैं, पिथियन गेम के माध्यम से जो मैंने बताया कि ये बैकग्राउंड है, ये जब सरकार के पास बात जाएगी तो सरकार के लिए तो अच्छा है ना, उसको भी तो नाम होगा। तो सरकार को करना चाहिए। अब मान लिया आप हमारे रीजनल सेंटर्स हैं, विदेशों में पढ़े हैं, कितना हमें फ़ायदा हो रहा है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस तो ऑलरेडी हैं ना देशों में, सिर्फ ब्रांड ही तो बनाना है इसको। कितना पैसा लगना है हमारा, और कितना पैसा हम लेके आएंगे विदेशों से इंडिया के खजाने में, आप उससे कंपेयर करें। मिल रहा है, मैं नहीं लगता इसकी ब्रांडिंग में कहीं प्रॉब्लम है। अब मान लिया कल आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद में आ गया, आपने झंडा उठा लिया, तो इसको क्या जरूरत है, ब्रांडिंग अपने आप हो जाती है। तो आपको जब आपके हित में कोई चीज़ मिलती है ना, तो देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जहाँ स्वार्थ होगा वहाँ कुछ नहीं होगा, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ सब कुछ होगा। Request Mr. Vijay Goyal sir to please present his memento to Mr. Anil Kumar sir. So we are starting this memento distribution with the Shri Ramchandra Kedar sir. Yes, sir. Thank you for your presence, sir. Your support and cooperation means a lot for us. His presence and support. Wait, sir. Wait. Sir. For his wholehearted support. Sir, look at. Yes, sir. It's a gold plated. Yes. Sir.
मैम सर थैंक यू आप लोगों की वजह से इतना सक्सेस हुआ है मैम यस आइए सर प्रशांत सुमित कहाँ நேஷனல் பிரசிடென்ட்டோட தமிழ்நாடு பிரசிடென்ட் सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह का कार्य को अंजाम दे रहे हैं। सरकार भी इसमें लगी हुई है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी हिंदुस्तान के लिए कि जो विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, आपने कहा, और विश्व गुरु रहेगा। तो सर जी इस तरह से दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? वैसे तो मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है, तो एक बार आप प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे तो जल्दी काम होगा सर। और मिले भी हैं आप, कार्य चल भी रहा जैसे आपने कहा है। देखिए हमें मंत्री से हम मिल चुके हैं और विभाग से बात कर रहे हैं और हर चीज़ें ठीक रास्ते पे जा रही हैं। अब मैं सोचूं कि एक रात में सब कुछ होएगा, नहीं होगा। सरकार भी अपने तरीके से तहकीकात करती है और हम यही मानते हैं कि अच्छा करेंगे, क्योंकि सरकार का भी एजेंडा यही है, हमारे आर्ट को, ट्रेडिशन को, उनको बचाना है और पूरे विश्व को एक डायरेक्शन देनी है। और आप बहुत सा इसमें ग्लैमर म्यूजिक सब लेके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी कि इस तरह से अगर सरकार इसको जल्दी दे, नहीं तो जैसे ग्रीस में आपको बुलाया था, इस तरह से कहीं ऐसा नहीं हो कि ये देर कर दें और ये कहीं और लॉन्च हो जाए। हमारे देश में कमी है कि हम डिसीजन लेते हैं, लेट लेते हैं, और हमारी सरकार को मैं समझता हूँ कि मोदी जी इतने कैपेबल हैं कि वो इस मैटर की मामले का जल्दी संज्ञान लेंगे, वो तुरंत एक्शन। तो सर पर्सनली आप मोदी जी से मिलेंगे? मुझे ज़िंदगी में एक बार मिलने का मौका मिला है, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने तो नहीं मिला। तो सर जी आप एक बार अगर प्रतिनिधि भेज के कार्यालय में एक मीटिंग फिक्स की जाए कि कहीं देर ना हो जाए। देखिए हम तो प्रधानमंत्री जी को निवेदन ही कर सकते हैं मिलने के लिए, अब टाइम देना तो उनके हाथ में। नहीं सर, वहाँ तक ये बात पहुँची है या नहीं? प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है हमने, लेकिन शॉर्ट ब्लॉक में आप मिल सकते हैं सर प्रधानमंत्री जी से इस कार्य के लिए स्पेशली। कोई बुलाएगा तो हम जाएंगे ना। तो सर जी ऐसा नहीं हो कहीं दूसरी कंट्री में लॉन्च हो जाए और आपको यहाँ से कोई लॉन्च तो करवा वर्ल्ड दे। में, देखो लॉन्च तो वर्ल्ड में हो चुका है, ये तो मूवमेंट बन रहा है। हाँ तो सर यहाँ से फिर कहीं हम देर ना हो हम भारत सरकार को इसकी अहम चीज़ें बता रहे हैं कि कितना अहम भारत के लिए और भारत को कुछ स्टेप जल्दी लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह के कार्य के लिए जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। गोयल जी हमारे बीच थे, बहुत अच्छी बातें कही। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत रिगार्ड। हमारे बीच प्रकाश चंद्र गुप्ता जी हैं, यहाँ पर गोयल जी आए हुए थे। उन्होंने, और वो फाउंडर हैं पैथियन गेम्स के, और पूरे देशों में, बाहर के देशों में उन्होंने इसका हल्ला बोल दिया है। इंडिया में भी इसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है कभी भी हरी झंडी मिल सकती है। तो सर जी आप बताएंगे कि किस तरह का कार्य सर जी कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और एक बार फिर विश्व गुरु बनने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। भारत तो विश्व गुरु है और भारत को विश्व गुरु बनने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। भारत विश्व गुरु बन चुका है, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में, माननीय मोदी जी के हाथों में बहुत दूर तक जो है ये बातें पहुंच चुकी हैं। और हमारे विजेंद्र गोयल जी जिन्होंने इस पाइथियन गेम्स की नींव रखी है, ये भी वो दिन दूर नहीं जबकि जो भारत सरकार इसको जो मान्यता प्रदान करेगी और हर क्षेत्र में जो स्ट्रगलर्स हैं वो इससे जुड़ेंगे और उनका विकास होगा और हमारे देश का काफ़ी नाम होगा और विदेशी मुद्रा जो है वो भी भारत को मिलेगी। और विजेंद्र गोयल जी ने जो ये प्रयास किया है ये बहुत ही सराहनीय है और
हर प्रकार से सराहनीय रहेगा। आज हमारे बीच यमीन जी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, हरियाणा से आते हैं। बहुत से इनके स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत से मेडल जीते हुए हैं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें गोयल जी ने यहाँ पर सारी बातें कही कि किस तरह से जो है गेम को आगे लाया जा सकता है। सरकार से भी बात चल रही है। तो आपके गुरुजी भी यहाँ आए हुए थे, तो कैसा लग रहा है आपको, किस तरह से जो है हम इस कार्य को अंजाम देंगे? गोयल जी ने जो पैथियन गेम के बारे में यहाँ पर शुरुआत की है, जो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर सरकार इसको परमिट करती है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं तो सरकार को इमीडिएटली इस पर इम्प्लीमेंट करना होगा, करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह की शुरुआत सर ने की है? नमस्कार, मेरा नाम यामिन है और मैं ताइक्वांडो अंतर्राष्ट्रीय कोच हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैथियन गेम्स का जो कल्चर जो अभी विजेंद्र गोयल जी ने बताया है, वो हमारे एक बहुत ही सीनियर हैं और 32 साल के बाद हम लोग मिले। और मुझे ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स के अंदर 40 साल के करीब हो गए हैं और ओलंपिक में भी अभी जो लड़की टोक्यो में गई थी उसको मैं ट्रेनर था। और मैं बताना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट एक हिंदुस्तान से ही गया हुआ, ये तो लोगों में जाके कुछ कंट्री ने इसको अलग अलग नाम दिया, जैसे जूडो जापान, कराटे ये अलग अलग, वुशु चाइना, तो ताइक्वांडो साउथ कोरिया, तो गया हुआ हमारे हिंदुस्तान से, महाभारत के टाइम से ये सब ये होता था। और मैं बताना चाहूँगा कि बॉलीवुड जो फिल्म इंडस्ट्री है, जिससे लोग एक हीरो के रूप में एक कला को देखते हैं, तो मेरा एक स्टूडेंट है राजकुमार राव, जो टीवी पे मेरे बारे में काफ़ी बोलता है। मार्शल आर्ट्स का है, ओरिजिनल ताइक्वांडो का जो गवर्नमेंट की तरफ से खेला हुआ है, जो इंडस्ट्री के अंदर भी अभी वो नहीं आया है कि वो मार्शल आर्ट में कोई मूवी में आए, लेकिन अभी उसकी एक एक्शन मूवी भी आ रही है। कुछ मूवी में मैं भी काम कर चुका हूँ बॉलीवुड एक्शन के लिए, जैसे अभी कश्मीर फाइल थी, उससे पहले हमारी काशी टू कश्मीर थी, उसका मैं एक्शन डायरेक्टर था। तो बहुत बड़ी बात और है। वो मैं अभी 3-4 फिल्म मेरी और भी आ रही है, जैसे सुशांत के ऊपर है, और भी है सत्संग के नाम से, तो उसमें भी, और गजनवी अभी हमारी रिलीज़ होएगी, उसमें भी मैं एक्शन डायरेक्टर हूँ। तो ये सब हम मार्शल आर्ट जो है फिल्मी के माध्यम से भी लोगों को दिखाते हैं, ताकि लोगों में एक आत्मरक्षा का, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का भी इसमें रहता है आत्मरक्षा के लिए, वो गर्ल्स के लिए मैं चाहूँगा कि वो बहुत ज़रूरी है। और मीडिया के माध्यम से ये हमारा मैसेज लोगों तक जाए कि गर्ल्स को स्पेशली सेल्फ डिफेंस के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। और ये गवर्नमेंट की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो स्कूलों में इस तरह के कोच रखें। जैसे आप के इंस्टीट्यूट से जो कोच निकलते हैं, तो आपके मार्गदर्शन जो है वो स्कूलों में वो टीचरों के द्वारा जो है बच्चियों तक पहुँचे। बच्चियों के लिए आजकल बहुत ज़रूरी है इस तरह के मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, इस तरह की पूरी उनको आना चाहिए। और बच्चों में भी, लड़कों को भी आना चाहिए, ताकि जो है ये एक दिन जो है सभी, जिस तरह से बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो वो अपने आप को बचा सके। मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मुझे टाटा टी कंपनी ने एक सौंपा गया था कि गर्ल्स सेल्फ डिफेंस के लिए टेक्निक कराया जाए। तो 1.5 लाख लड़कियों को हमने फ्री में ट्रेनिंग दिया था सेल्फ डिफेंस, स्कूलों में जा के। बहुत बढ़िया। तो ये एक हम चाहते हैं कि हमारी जो पैथियन गेम्स है, मुझे भी इसका एक मेंबर पार्ट बनाया है, तो मैं अपनी तरफ से और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के, और हमारे पास काफ़ी अर्जुन अवार्डी है जो इसमें मार्शल आर्ट के जो और अलग गेम्स के जूडो वो हिस्सा भी लेंगे, वो हिस्सा भी लेंगे, और वो कर भी रहे हैं, लड़कियों को सिखा भी रहे हैं स्कूलों में जा के। बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि विजेंद्र गोयल ने, जो मेरे सीनियर है, वो तो मेरे होम सिटी से हैं, डिस्ट्रिक्ट से है और मेरे गांव से ही हैं, तो मुझे इसका भी समझा कि मैं भी इसका एक हिस्सा बन सकूं। और ये जल्दी ही, जैसे ओलंपिक है, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम जब तिरंगा लेते तो हमारी शान हमारे आंखों में एक जब्बा अलग से हो जाता है कि मैं देश का प्रतिनिधि कर रहा हूँ। तो मैं 2000 में पेरिस फ्रांस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गया था, तो मेरा 4th रैंक पे मैं रहा था। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बॉलीवुड से लेकर ओलंपिक तक भी अपना हमारी कला का जो है आगे तक बढ़ा रहे हैं। पैथियन गेम्स देश का नाम रोशन कर रहे हैं और इससे और बड़ी बात हो जाएगी। और पैथियन गेम्स के जरिए हम लोग जो है इसी ओलंपिक जैसे हमारा है, तो एक दिन ओलंपिक से के लेवल पे ये पैथियन गेम्स खड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं।
जैसे इसमें कल्चर आर्ट है और मार्शल आर्ट तो है ही यही, जी तो हम जो हमारी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। बिल्कुल आप निभा ही रहे हैं और देश के लिए आप तो वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं, ऊपर से जो आप फिल्म इंडस्ट्री में जो मार्शल आर्ट दे रहे हैं सभी के लिए, तो ये अच्छी बात है और आपने इस तरह से इस लेवल में काम कर रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।